Assalamualaikum dear students. I hope that you all are doing good at your homes. Take out your Oxford Progressive English books, page number 20, unit number 1, text number 5, reading for information. हमने last lecture में text number 1 पढ़ा था, Venus a city of water, और इस lecture में हम क्या करेंगे, text number 2 पढ़ेंगे, Street Children in Brazil. इसको understand करेंगे और इसकी reading करेंगे. So let's start it. आप first of all you have to write the difficult words English meanings and Urdu meanings. मैं इसको एक read देती हूँ. As in many countries in the world, in Brazil there is very obvious social inequality. Inequality meaning is difference in status, size, etc. Lack of equality. ना बराबरी या फर्क करना. There are many enormously rich people and also vast number of extremely poor people living well below the poverty line who scratch a living as best as they can. Enormously meaning is to a very great degree or extent. Its Urdu meaning is बहुत ज़्यादा. In Brazil, the poverty line who scratched a living as best as they can. Poverty का मतलब क्या है? The state of being extremely poor, its Urdu meaning is ghurbat. In Brazil, the problem is very serious because 1/3 of the population earns less than $80 a month and many earn nothing at all. Many people have no jobs and are illiterate. Illiterate English meaning is unable to write or read, non-educated, jahil. They have no hope of a better life for themselves or for their children. Hundreds of children, many as young as 8 years old, leave their families because not only is there nothing for them at home, but home is frequently a violent place. Violent meaning is using or involving physical force intended to hurt or damage or to kill someone or something. Urdu meaning is Purtashaddud. These homeless children live on the street without any shelter. They beg for money in order to buy the barest necessities of life. Although some people try to help them, the authorities who should do so do not. The government should not help the government does not help the children, and the police often use violence towards them. As more families arrive from the countryside to try and find work in the city, the gigantic problem of street children grows worse day by day. Gigantic English meaning is of a very great size or extent. बहुत बड़ा. Okay, ये हो गई आपकी रीडिंग. अब मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूँगी. As in many countries in the world, the Brazil there is very obvious social inequality. ज़्यादातर जो कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड में, उसमें एक जो कंट्री है वो एक ब्राज़ील है, और ब्राज़ील में आपको बहुत हद तक काफ़ी ग्रेट एक्सटेंट पे आपको इनइक्वालिटी देखने को मिलती है. अब इनइक्वालिटी क्या होता है? जो कि बराबरी होती है और फ़र्क करना होता है. वहाँ लोगों में फ़र्क किया जाता है, जो कि अमीर होते हैं उनको में और जो कि गरीब लोग होते हैं उनमें, उन दोनों में फ़र्क किया जाता है. गरीब को कमतर समझा जाता है और अमीर को अच्छा समझा जाता है. There are many enormously rich people and also vast number of extremely poor people living well below the poverty line who scratch a living as best as they can. अब कहते हैं कि यहाँ जो rich people है, जो अमीर लोग हैं, वो काफ़ी enormous तादाद में है, बहुत ज़्यादा की तादाद में है, और and also vast number of extremely poor people, और काफ़ी ज़्यादा नंबर में आपके पास पुअर पीपल भी हैं, जो गरीब लोग भी हैं, जो कि पावर्टी लाइन के नीचे अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं. जो पावर्टी लाइन है वो पावर्टी लाइन होती है जो गुर्बत की एक लाइन होती है. पावर्टी लाइन उसको बोलते हैं. उसके नीचे वो अपनी ज़िंदगी बसर करें, मतलब उनके पास बहुत ज़्यादा थोड़े पैसे हैं और वो बहुत ज़्यादा गरीब हैं. इन ब्राज़ील द प्रॉब्लम इज़ वेरी सीरियस बिकॉज 1/3 of the population earns less than
$80 a month and many earn nothing at all. ब्राज़ील में जो ये पावर्टी की प्रॉब्लम है, जो गुर्बत का ये आलम है, ये इतना सीरियस है, ये प्रॉब्लम इतनी सीरियस है कि यहाँ पे पूरे पॉपुलेशन में जो गरीब है उसमें 15% इस तरह है, 100 में 15% इस तरह है जो कि मंथ में सिर्फ और सिर्फ $80 कमाते हैं, जो कि एक फैमिली को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा कम होते हैं और अच्छी ज़िंदगी बसर करने के लिए काफ़ी कम होते हैं। और कुछ तो इस तरह है जो कि बिल्कुल भी नहीं कमाते, एंड दे अर्न नथिंग एट ऑल, बिल्कुल नहीं कमाते। अर्निंग का क्या मतलब होता है? कमाना। मैनी पीपल हैव नो जॉब्स एंड आर इलिटरेट, काफ़ी लोगों के पास जॉब्स नहीं है उधर, और ज़्यादातर उनमें जाहिल हैं, उनको पढ़ना लिखना नहीं आता, वो अनएजुकेटेड हैं। दे हैव नो होप ऑफ अ बेटर लाइफ फॉर देमसेल्व्स और फॉर देयर चिल्ड्रन, उनको कोई उम्मीद नहीं है। दे हैव नो होप, उनको कोई उम्मीद नहीं है अच्छी ज़िंदगी बसर करने के लिए, अच्छी ज़िंदगी अपने बच्चों को देने के लिए उनके पास कोई उम्मीद नहीं है। हंड्रेड्स ऑफ चिल्ड्रन, मैनी एज यंग एज 8 years old, leave their families because not only is there nothing for them at home, but home is frequently a violent place. अब कहते हैं कि हज़ारों की तादाद में इस तरह बच्चे हैं जो कि 8 years तक जब वो पहुँचते हैं वो अपनी फैमिलीज, अपना घर छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि उनके लिए घर में कुछ नहीं होता। There is nothing for them at home, उनको खाने पीने के लिए चीज़ें नहीं मिलती घर में, उनको उस तरह फैसिलिटीज़ नहीं मिलती हैं जिस तरह घर में मिलती है। एक तो वजह ये हो गई। दूसरी वजह क्या है कि वो घर इनके लिए पुरतशद्दुद जगह बन जाती है, इनकी मारपीट होती है, इनके लिए वो एक वायलेंट प्लेस होता है और उनके साथ वायलेंस होता है, घर में तशद्दुद होता है उनके ऊपर, उनको मारा पीटा जाता है, वायलेंस होती है। These homeless children live on the street without any shelter. अब ये जो होमलेस यहाँ के चिल्ड्रन हैं, जो फैमिलीज अपनी फैमिलीज को छोड़ के चले जाते हैं, जो बेघर हो जाते हैं, होमलेस हो जाते हैं, तो ये फिर कहाँ रहते हैं? ये लोग फिर जाके स्ट्रीट्स में रहते हैं, जो कि गली मोहल्ले होते हैं उसमें रहते हैं, उनके पास कोई छत नहीं होती। दे हैव नो शेल्टर एनी मोर, विदाउट एनी शेल्टर, दे लिव विदाउट एनी शेल्टर। They beg for money in order to buy the barest necessities of life. वो पैसों के लिए भीख मांगते हैं। They beg for money, क्या किस चीज़ के लिए बेग करते हैं, किस चीज़ के लिए भीख मांगते हैं? ताकि वो अपनी जो बेसिक नेसेसिटीज़ होती हैं, जो ज़रूरियात होती हैं, ज़रूरी चीज़ें होती हैं, वो अपने लिए ले सकें। इनका क्या हो गया, अपने खुराक का इंतज़ाम करेंगे, इसलिए ये लोग क्या करते हैं? भीख मांगते हैं। They beg for money. Although some people try to help them, कुछ लोग ट्राई करते हैं, उनको पैसे देते हैं, उनकी हेल्प करते हैं। द अथॉरिटीज़ हु शुड डू सो डू नॉट। अब जिनके पास इख्तियारात हैं, जो गवर्नमेंट है, उनको चाहिए कि इन बच्चों की हेल्प करे, पर वो नहीं करते हैं। दे डू नॉट हेल्प देम। द गवर्नमेंट डज नॉट हेल्प द चिल्ड्रन एंड द पुलिस ऑफन यूज द वायलेंस टुवर्ड्स देम। अब जो गवर्नमेंट है वो अक्सर इन बच्चों की हेल्प नहीं करती, और जो पुलिस है वो इनके साथ तशद्दुद करते हैं, वो इनको मारते पीटते हैं, वो इनके साथ वायलेंस का रवैया इख्तियार करते हैं। इनकी हेल्प करने के बजाय गवर्नमेंट इनके साथ वायलेंस करती है, जो पुलिस है वो इनके साथ वायलेंस करती है। एज मोर एंड मोर फैमिलीज अराइव फ्रॉम द कंट्री साइड टू ट्राई एंड फाइंड वर्क इन द सिटी, बाहर के जो सिटीज़ है, जो कंट्री साइड है, उधर से लोग आते हैं यहाँ अपने लिए काम ढूंढने, और वही होता है उनके घर से भी बच्चे निकाले जाते हैं, उन पर भी तशद्दुद किया जाता है। द गिगेंटिक प्रॉब्लम ऑफ स्ट्रीट चिल्ड्रन ग्रोस वर्स डे बाय डे। और ये जो कि बड़ी तादाद में जो प्रॉब्लम है स्ट्रीट के बच्चों की, स्ट्रीट चिल्ड्रंस की, ये और भी वर्स्ट होती जा रही है दिन ब दिन, और भी ये हालत एक्सट्रीम पे पहुंच रही है, और भी इन बच्चों की तादाद बढ़ रही है, और इनके लिए हेल्प करने के लिए वहाँ कोई भी नहीं है। ओके, सो आई होप आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम टेक्स्ट नंबर 3 से स्टार्ट लेंगे। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।